This is Wide Angle with Ashok Vyas. नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और जब हम जीवन की बात करते हैं तो श्रद्धा के बिना जीवन का परिचय भी हमारे लिए खुलता नहीं है। अगर श्रद्धा नहीं है तो हम किसी से बोल भी नहीं सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं। हम चलते चलते कहाँ पहुंच जाते हैं, उसके पीछे जो श्रद्धा का आधार है वो कई रूपों में प्रकट हो सकता है, क्योंकि जीवन अनंत से संबंधित है। तो अनंत की बातों को जब हम सीमा के साथ देखते हुए असीम की तरफ जाते हैं और श्रद्धा के रंग किसी किसी जीवन में विशेष रूप से प्रकट होते हैं, तो उनसे मिलने का, उनके जीवन के बारे में जानने का जो एक आनंद है वो निराला है। तो इस निराले आनंद की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं हमारे अतिथि के साथ, जो ट्रस्टी हैं शिरडी साई संस्थान शिरडी के केसी पांडे जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ओम साई राम, आपके दर्शकों को भी थैंक यू। पांडे जी, आपके परिचय में एक तो मुख्यतया शिरडी बाबा का जो एक स्वरूप जुड़ा हुआ है आपके साथ जहां आप जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ के ट्रस्टी हैं, पर इसके अलावा जो मिनरल से रिलेटेड आपका व्यवसाय है, सुपर्ब मिनरल इंडिया, और आपने एक स्टैब्लिश किया है बड़ा म्यूजियम, गारगोटी मिनरल म्यूजियम भी। पर हम इन बातों की तरफ बढ़ने से पहले आपकी नेवी के जीवन की तरफ चलते हैं। सो यू आर सर्विंग आवर नेशन इन नेवी। टेल अस अबाउट दोज डेज एंड हाउ बाबा came into your life. See, let me introduce you with my background. I did my 10+2 and then joined Naval College of Engineering, INS Shivaji Lonawala, and I did my mechanical engineering and I got specialized into the aeronautical engineering. That time exactly I was little less than 17-year-old when I came there. And there were a lot of development work going on near Pune, Mumbai and all that. So these quarries were operating. From there I picked up this hobby. And when I moved to the, my further career, one of my friend, he was a doctor. We were searching the rocks and we happened to go to the Shirdi. I was not knowing anything about Shirdi. Neither I read anything, neither I have seen anything. The doctor took me there and he said, he's Shirdi Sai Baba. He gave a little brief introduction. And I happened to have darshan of Baba. And from that day, my love, my affair started with Sai Baba. And that was so much that I settled in Nasik because of Shirdi Sai Baba. My business flourished. Whatever I have achieved in my life, it is a tribute of Shirdi Sai Baba. And here I am in front of you. And it's like you said, it's Anant. Or that's why I say Anant Koti Brahman Nayak has influenced my life in every moment, in every steps. Pandit, let's just go back to the moment when you say that your love's affair with Baba started with darshan. So there are two sides to it probably, and there is a mysterious area about which we do not know much, because many people go to Shirdi. Many people come back and they don't go again, and very few probably are, if one would say, are the chosen devotees like you who have such an intense association on continuous basis with Baba. Share with us that moment when this ongoing eternal relationship unfolded for you. With due humbleness, I would like to say my personal opinion. How many visits once makes Shirdi, that doesn't measures the devotion of a person. And knowing Baba very well, I can say that. He goes, he has no boundaries, he has no parameters. He goes and wakes you up, and whenever he wants that you should visit him. Now you see so many temples around the world, around the globes. Even in India it is like that. Every third car if you see on the road or truck, you see the Shirdi Sai Baba. So what I am telling you, that it's not the visit to Shirdi. Baba is everywhere, Baba is with you, and he makes you aware that I am here with you, I am watching you. And he has no boundary, no parameters, and his devotion has no parameters. He is everywhere. He loves his kids, he loves his
devotees, his kids, whatever you say, that बच्चे बोलें आप कुछ भी बोलें, और इसीलिए आज करोड़ों की संख्या में, मतलब शिरडी में एक साल में कम से कम 15 to 20 million people visit शिरडी. And let me tell you, from all around the world, हमारा जो शिरडी का साईं चरित्र है, शायद ही कोई भाषा ऐसी होगी, इवन फॉरेन लैंग्वेजेस आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 22 लैंग्वेज or 27 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग mostly every existing language on this earth. साईं चरित्र is being written, has been written. अगर एक दो भाषाएं छूट गई हैं तो अब लिखी जा रही हैं. तो बाबा has no limit, no boundaries, and he has an enormous affection and many miracles we see. As I am a world traveler, I see, I visit कि हमारा कैंसर ठीक हो गया, हमारा ये ठीक हो गया, because कलयुग वैसे भी सफरिंग का समय है. And Baba has come out as a healer, as the biggest healer on the earth, whether you name the God or you name the Guru, whatever it is. So if somebody has experienced Baba, I can very well say that he is the biggest healer on this earth. Baba's healing power was experienced by people during the period when he was there in the physical form also, and he used to distribute Udi. Yes. Tell us about the significance of Udi now in the present circumstances when people go to Shirdi, they still carry the Udi. Udi. Yes, sir. As for Hindu mythology, the Yajna and Havan is the one way of offering to the God. कहते हैं यज्ञ में जो आप आहुति डालते हैं वो ईश्वर को भोजन देते हैं. तो जो शिरडी में जो धूनी जल रही है वर्तमान में भी, वो बाबा के समय से ही जल रही है. और जो शिरडी साईं संस्थान है उसमें समय से हर दिन एक रिचुअल होता है जिसमें यज्ञ सामग्री डालता है, घी और जो भी चीज़ें, लोबान और जो भी शास्त्रों के द्वारा, विधि के द्वारा जो लिखा गया है वो उसमें डाला जाता है. वो जब डस्ट बन जाता है वो सब जगह जो श्रद्धा के लोग होते हैं. और इस समय तो आपके अमेरिका में 27 इस्टेब्लिश टेम्पल हैं. मैं छोटे टेम्पल की बात नहीं करता हूँ. And my travel brings almost every month to America to me for the last 19 years. And I try to visit, in every visit, the big temple and small temple. I'm not counting temples some people, they have in their shops or in home. So those, I mean, in my experience, I have gone to many places and I have seen many people, even in America and in India, they are in the deathbed, and when the doctor has refused that nothing can be done, and lot of time, not once, you can share and call the Sai devotees that by putting Baba's vibhutis, and I'm talking about the doctors from many races, it's not only Indian doctors or American doctors or British doctors, they have experienced the karishma or charishma, whatever you say, of the vibhuti and Baba's dust. And even Puttaparthi Sai Baba, he used to distribute. I met him also 6 months ago before he left for heavenly abode. And I had a similar experience with his, he was trying to talk to me, though he was not well. But still, he blessed me and I had his divine blessings and feeling that he's a godly figure and he's like a god. And his dust and Baba's dust are same. That again is an interesting aspect. Some people have experienced the oneness or the continuation of the manifestation of the same power from Shirdi to Puttaparthi, and some people still question that. But this again is something probably that is related to everybody's individual experience, would you say? Ashokji, it's not. Baba, I know many people where Baba has transformed his power, time to time, not always. And even you can be that Ashokji went somewhere with Baba's power and he has healed certain person on his behalf. So basically, my knowledge, if I am ignorant, that should not be a curse for somebody, because I cannot comment. Because it was TV9 asked me when he died that can you tell him that he was reincarnation of Shirdi Sai Baba? Very humbly I told. I said he was 80 plus when he died. I am just 50. So I cannot write character certificate of my grandfather. He was a godly figure, undisputed. How I can say that he was reincarnation? He was a god, I can say that. And when he himself said that he was the reincarnation, it should not be a subject of dispute or debate.
in our Shastras, of course, you have no reference of Shirdi Sai Baba. So many people, when they follow the traditional path of invoking divine or being one with the all-pervading, then they have these forms in their mind, which could be Lord Ram, Krishna, Lord Shiva, Ma Amba, of course Ganesh and all those. But then they have some sort of questions whether Shirdi Sai Baba even is the same, or so how if you want to respond to this. जो मैंने सुना है इंटेलेक्चुअल से, साईं सब में मौजूद है। रही बात प्रश्न और उत्तर की, इवन राम रहीम और कृष्ण के एग्जिस्टेंस में भी क्वेश्चन मार्क लोगों ने लगाया है, तो बाबा तो मुश्किल से 160-170 साल पुराने, अभी उनका सेंटेनरी ईयर हम लोग मनाएंगे 2018 में, सो वी आर प्लानिंग फॉर दैट। तो आई मीन आपने जैसा कहा कि जैसे जैसे समाज बढ़ा, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ी, चाहे जो भी भगवान को जिसने माना, सब में एक कल्ट ऐसा आया, क्वेश्चन मार्क आए, तो मैं इसको एक इतना ही कह सकता हूँ कि मैं फिर वहीं पे आऊँगा, अगर मेरा ज्ञान अधूरा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये मेरी अक्षमता है, शायद मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और पढ़ लिख भी नहीं सकता हूँ, परंतु मैं क्वेश्चन मार्क साईं बाबा पे नहीं लगा सकता हूँ, जहाँ आज इतनी बड़ी आस्था लोगों की है, जिसने आप कबीर पे आस्था लगा कैसे लगा, जिसने दीवाल को चला दिया। ऐसे महापुरुष, गुरु नानक, ऐसे महापुरुषों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना मेरी तो क्षमता नहीं है। अगर कोई अपनी क्षमता दिखाना चाहता है तो जरूर दिखाए। आई हैव नो कमेंट्स ऑन इट। दिस इज वाइड एंगल विद अशोक व्यास। बढ़ते हैं दूसरा जो मुख्य समझे बिंदु साईं बाबा के साथ में, श्रद्धा की आपने बात थोड़ी बहुत की, सबूरी की तरफ बढ़ते हैं। और आज के युग में लोग जल्दी जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते हैं, और ये जो सबूरी है, ये सब्र, पेशेंस, ये डेवलप करने में जो बाबा के साथ आपका संबंध रहा, उससे व्यक्तिगत रूप से आपको लगा कि कुछ विशेष सहायता मिली हो? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं अपने छोटे से ज्ञान में ये कहता हूँ कि कलयुग के 2 महामंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा क्यों? आप देखें, बहुत चीज़ों में, ओनली भगवान के प्रति नहीं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और माँ बाप को भगवान समझते हैं, तो श्रद्धा हर जगह आवश्यक हो। श्रद्धा पति पत्नी के व्यवहार में, माँ बेटे के व्यवहार में, पिता के व्यवहार में, भाई के, कहीं हम खोते जा रहे हैं इस भौतिकता की रेस में। तो मैं अपने वक्तव्यों में जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, छोटा बड़ा, मैं ज़रूर कहता हूँ कि जो इस महामंत्र का पालन करता है, जो इस महामंत्र में चलने की कोशिश करता है, हमें कोशिश ही करना है, अचीवमेंट तो फिर वही गीता का ज्ञान आ जाता है। मैं इतना निश्चित आपसे कहता हूँ, जिसने बाबा के श्रद्धा और सबूरी वाले मंत्र का पालन अपने जीवन में किया, बाबा ने उत्तरोत्तर उसके जीवन में हर तरह की आध्यात्मिक प्रगति, भौतिकता की प्रगति, जो भी उसकी नीड हो, बाबा स्वयं आके उसको कैटर किए हैं। और मैं आपकी स्टूडियो में बैठा हूँ और अभी भी लगभग 8वां साल मेरा ट्रस्ट में चल रहा है, और हम लोग पहले ऐसे सौभाग्यशाली ट्रस्टी हैं जिनको इतने दिनों तक लगातार सर्व करने का मौका मिला। ये उसी की कृपा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे मांगने में, हमारे याचना में, हमारे प्रार्थना में कमी हो सकती है, मगर साईं बाबा के देने में कोई कमी नहीं हो सकती। सब्र, आज कलयुग का जो समय है, मैंने आपसे कहा कि ये तमाम सारे शास्त्रों ने अपने अपने ढंग से कि भाई एक ऐसा समय आएगा जहां हर तरह की गिरावट होगी, हर चीज़ों में, प्रार्थना में, श्रद्धा में, सबूरी में। लेकिन बाबा ने कहा, समय से जब बाबा का प्रादुर्भाव हुआ, तो उसमें हिंदू मुस्लिम राइट्स, ये सब चीज़ें चल रही थी, लोग झगड़ रहे थे तमाम जगह। तो बाबा का उस समय यही संदेश आया कि भाई धर्म के नाम पे मत झगड़ो। इसीलिए उन्होंने कहा, मैं हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ। कई बार लोगों ने जानने की कोशिश की कि आप कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं। बोले, उनसे क्या मतलब है, मैं कौन हूं, इसमें आस्था रखो। और तब उन्होंने सबका मालिक एक, श्रद्धा, सबरी, आधा दिन वो कहीं और बिताते थे, आधा दिन मस्जिद में बिताते थे। और लोग ये भी कहते हैं कि देखिए कितने बड़े महान थे, आज एक धर्म को दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए कितनी मारामारी होती है, झगड़ा होता है। उन्होंने बड़े प्यार से मस्जिद का नाम द्वारिका माई रख दिया। आप भी जानते हैं इस बात को, हम भी जानते हैं। कहीं उफ तक नहीं हुई। उनके भक्तों में हर धर्म के लोग थे उस समय भी, अभी भी
अभी भी हैं, और वहीं बगल में मेहर बाबा थे, वहीं जनार्दन स्वामी थे। आप देखिए वो जगह आज जंगली दास महाराज के लोग हैं। अगर आप वहाँ नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं आपको ऐसी सब जो है आश्रमों का दर्शन कराऊंगा और वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं उनसे मिलवाऊंगा। तो बाबा तो हमेशा श्रद्धा और सबरी के माध्यम से, और आज भी अशोक जी मुझे मालूम है आप बाबा के परम भक्त हैं। डॉक्टर नूरी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने जो लॉन्ग आइलैंड में मंदिर बनाया, आज कितने मंदिर बन गए। मैं परसों बाबी कुमार से मिला था, बाबी कुमार उतना साईं बाबा के बारे में नहीं जानते हैं। उन्होंने शेयर किया कि बाबा ने मुझे रात में आके दर्शन दिए। ही वॉज नॉट वेरी मच इंक्लाइंड अबाउट, कभी वो शिरडी साईं बाबा गए नहीं हैं। मैं कल एक अटॉर्नी के पास बैठा था, संजय चौबे, वो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे बाबा ने मुझे न्यूयॉर्क में दर्शन दिए और मुझे वो मंदिर इनाग्रेट भी नहीं हुआ था। मैं जाके मंदिर के चौखट पे सुबह खड़ा हो गया, प्रीस्ट ने बोला आप कहाँ आए हैं? बोले मैं बाबा के दर्शन के लिए आए, सुना यहाँ मंदिर खुला है। बोले मंदिर अभी तो खुला नहीं है, अभी खुलने वाला है, लेकिन तुम आ गए तो बाबा का दर्शन करो। तो ऐसी कितनी चीजें हैं। और कभी अगर बाबा के मिरेकल्स और बाबा की ये अद्भुत जो कहानियां हैं, जो सच्ची कहानियां, उसको हम नरेट करेंगे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आज बहुत ही आवश्यक है श्रद्धा और सबरी पे चलना। और कैसे बाबा का बहुत ही सिंपल लिटरेचर है साईं चरित्र। पहली बार जब साईं चरित्र पढ़ेंगे तो अगर आप हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं तो आपको ऐसा लगेगा ये सधुक्कड़ी भाषा है, जो कबीरदास वाली भाषा है। लेकिन जैसे जैसे आप साईं चरित्र को कई बार पढ़ेंगे आपको एक महाकाव्य के रूप में साईं चरित्र नजर आएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप कुछ अपनी ट्रेट्स डेवलप करना चाहें, क्रिएटिविटी अपनी डेवलप करना चाहें, कुछ अपनी अच्छाइयां डेवलप करना चाहें, तो आप जरूर साईं चरित्र पढ़ें। जो भी आप जिस धर्म की पुस्तक, रामायण, जो भी आप हनुमान चालीसा, जो भी आप पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते रहें, लेकिन एक दो बार साईं चरित्र भी पढ़ के देखें बाबा कैसे अपने आलिंगन में आपको ले लेते हैं और उसी में आपको पूरे काव्य सबका दर्शन कराते हैं साईं चरित्र में। तो सबका दर्शन करने का जो आनंद है उससे हमारे साथ बांट रहे हैं शिरडी साईं बाबा संस्थान शिरडी से पधारे हुए वहाँ के ट्रस्टी केसी पांडे जी, जो बाबा के संस्थान के ट्रस्टी होने के साथ साथ एक बहुत सफल उद्यमी भी हैं। एंड हिज रिलेशनशिप इज विद मिनरल्स, सो इन अ वे ही इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सॉइल ऑफ इंडिया। सो न केवल वो भारत की मिट्टी में जो रत्न मिलते हैं उनको लेकर पूरी दुनिया की यात्रा करते हैं, बल्कि वहाँ के स्पंदन, वहाँ की जो चेतना है उसको भी वो बाबा की कृपा से जगह जगह पर बांटते हैं। ऐसा हमें प्रतीत ही नहीं बल्कि विश्वास होता है। यू गो अहेड प्लीज कंटिन्यू। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि, और स्पेशली हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कहना चाहूँगा कि बेस हम अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, उनके ट्रेड्स को डेवलप नहीं कर पाते। वी इंडियन ओनली वांट दैट ही शुड बी IIT, MBBS, और अभी IT आ गया। वी डोंट नो दैट देर आर एनफ वोकेशन इन द लाइफ। आई मीन आज लोग अपने बच्चों को सिंगर बनाना चाहते हैं, क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि बाबा की कृपा से, बाबा के पारस स्पर्श से, ये जो सामने आपके लोहा बैठा हुआ है ये ग्लोबली एक्नॉलेज्ड और फेमस है। हिंदुस्तान में मुझे लोग कम जानते हैं, विश्व में मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मुझे नहीं जानता होगा। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को उनके ट्रेड्स डेवलप करें, उनकी प्रतिभा को पहचानें, उनके ऊपर थोपे नहीं, प्रतिभा को, कोई चीज़ों को हम थोपे नहीं। मेरी सबसे बड़ा संदेश जो मैं छोटा सा म्यूजियम शिरडी वहाँ बनाया, अभी शिरडी में बड़ा म्यूजियम बना रहा हूँ, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम हिंदुस्तान की संपदा से, हिंदुस्तान की अनेकों संपदाएं हैं और हिंदुस्तान की संपदाएं विश्व पे भारी पड़ती हैं, इसलिए नहीं कि मैं भारतीय हूँ। और यदि हिंदुस्तान अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर ले तो आज ही हिंदुस्तान विश्व का गुरु बन सकता है, चाहे आप मेटलिस्टिक वर्ड हो, चाहे साहित्यिक हो, चाहे साइंटिफिक हो। अपार संपदाओं का देश है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जब मेरा चर्चा हो रहा था स्टूडियो के बाहर कि तिरुवनंतपुरम का खजाना, आपकी साहित्यिक संपदा, यूरेनियम आप चिल्ला रहे थे, यूरेनियम आपके पास इतना है कि आप उसका भंडारण नहीं कर पाएंगे। और चूंकि खनिज मेरा क्षेत्र रहा है और मैं सिर्फ बाबा की कृपा से खनिज के क्षेत्र में आया हूँ, आई हैव नो फॉर्मल एजुकेशन ऑन जियोलॉजी,
तो ये बाबा की कृपा है कि विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट ऑन मी, आई हैव बिकम ए फेमस पर्सन इन जियोलॉजी इन द एंटायर वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया. तो there is a lot of demand of the Indian there is a minerals. lot of demand. It's a lot of importance for the scientific research also. जैसे आप देखिए आजकल ब्लू होल की चर्चा होती है, जो फ्लोरिडा से थोड़ा आगे जहाँ डाइविंग चल रही है, जहाँ वो एजेज की देख रहे हैं कि कैसे परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हुआ और कैसे कम समय में रैपिड चेंजेज आए, कैसे लॉन्ग समय में धीरे धीरे चेंजेज आए. तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है और धरती जो है ना अपने आप रहस्य अनफोल्ड करती है धीरे धीरे. हम तो खाली वो ऑलरेडी वहाँ है, हम खाली यूरेका करके अपने पीठ को थपथपाने की कोशिश करते हैं. लेकिन एक रहस्य आप उभारते हैं, दूसरा रहस्य चाहे भगवान माने, चाहे प्रकृति माने, चाहे नेचर माने, वो पैदा कर देती है. तो एनॉर्मस. और रोटी कपड़ा मकान में आदमी को कितना पैसा लगता है. क्विकली आप बताएं, जो एंड यूज है इंडियन मिनरल्स का, उसके क्या क्या मेन आपको क्लासिफिकेशंस दिखाई देते हैं वर्ल्ड ओवर? देखिए मिनरल्स की क्लासिफिकेशन कई तरह की है. मैं जिस मिनरल्स, मेरा जो कलेक्शन का थीम है वो है द ब्यूटी इन द मदर अर्थ. भारत के आंचल, भारत माता के आंचल में जो मिनरल के रूपी पुष्प हैं, मैं उनका संकलन, उनका संग्राहक हूँ. लेकिन यूरेनियम भी मिनरल है, आपका गोल्ड भी मिनरल है, कॉपर भी मिनरल है. कमिंग बैक टू माई मिनरल्स, क्योंकि बाकी मिनरल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, मेरा बड़ा नेग्लेक्टेड है और बड़ा रेयर फील्ड है. मेरे मिनरल्स का यूसेज मैं आपको बता रहा हूँ. दे हैड बीन यूज्ड फॉर मेडिसिन फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. जैसे आपने देखा होगा स्वर्ण भस्म, लौह भस्म, आपके मानक भस्म, इवन आपने देखा होगा सीप को लोग पीस करके आयुर्वेद में डालते हैं. दूसरा ये है कि जो इट वर्क्स एज ए कैटलिस्ट इन बिग केमिकल रिएक्शन. देन सबसे बड़ा जो आज का सिविलाइजेशन का चैलेंज है वो कि डिस्पोजिंग ऑफ द न्यूक्लियर गार्बेज. नो मैटर व्हाट क्रिएटिविटी यू क्रिएट फ्रॉम द न्यूक्लियर प्लांट्स, चाहे पावर प्लांट बनाते हैं, चाहे रिएक्टर बनाते हैं, उसके जो रेजिडुअल्स रह जाते हैं, जो स्क्रैप रह जाते हैं, दे आर वेरी चैलेंजिंग एंड दे आर वेरी हजार्डियस फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन. तो माई मिनरल, दे रिएक्ट विद देम and they make them non-hazardous. So, you know, it's one of the biggest challenge of the civilization, how to dispose the nuclear waste. And these minerals are used to dispose it off. And they are also used for making the good winery, good distillation, good mineral water, and many more uses. Wonderful. Just talking about the other side of the use of minerals, wherein you go to someone who tells you about your future and then he tells you to wear some kind of a stone. Yeah, that's also minerals, but they use the gemstone. My minerals are not gem because they have less hardness. They have more power. They are more healing power because when you wear a gemstone, basically they are subject to cut, facet, polish and friction. So they lose certain their quality. उनकी मौलिकता में थोड़ी कमी आती है. लेकिन जो हमारे minerals हैं वो अपने मौलिक रूप में 100% है. That's why they are used as a collectible, like somebody collects the sculptures or somebody collects the paintings. Our minerals are also used as a collective and they are one of the rarest collectible in the world. And let me tell you the value. Some minerals are sold for 1 to 5, 10 million US dollar. Wow. So that tells us about the value, the value, as well as where you stand in terms of... No, I'm a collector. Basically, I only sell to sustain my organization. There are 150 people working for me directly on my payroll, and there are 2,000 families I support in India because all from tribal and other places, they are under my, like you, I support everything from them because they are my source of these minerals. And my minerals are random find. Whenever there is any road widening or they are making any dam or they are digging the well for water resources or they are digging the canal or you are laying the new railway lines. So these are the random finds. None of these minerals are economically viable to mine because they are found somewhere in a 10 gram, somewhere in 50 gram. Unlikely like you mine coal. So coal में metric ton आपको मिलेगा. So coal is economically viable to mine, even ores. But my minerals are not economically viable because they are random find. Sometimes you search 10 years in an area, you will not find a single crystal. Sometimes in 10 days, you can have the room filled with the minerals. Baba is like a center from where this pure love is flowing for one and all. And bringing that love with us here in our studio, K.C. Pandey, trustee of Shirdi Sai Sansthan, was with us. So nice of you. Thank you very much. Thank you, sir. Om Sai Ram. Om Sai Ram. This is Ashok Vyas.
This is Wide Angle with Ashok Vyas.